Hello everyone, welcome to Elite Link Online. We are studying Biology Chapter 2 Tissues and we continue with animal tissues. Okay, starting with animal tissues, there are 4 categories of animal tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, that is muscle tissue, and the neural tissue. We will be understanding one by one. सेम तरीका रहेगा टिश्यूज पढ़ने का, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारे टिश्यूज का यही तरीके से पढ़ेंगे. वी स्टार्ट. एपिथेलियल. एपिथेलियल का मतलब होता है अपर सरफेस, द टिश्यू विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन के जो ऊपर है, इंटरनल ऑर्गन में भी, जैसे कि स्टमक या लिवर, लिवर का जो ऊपर का लेयर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज epithelial tissue. For example, lungs. Lungs का भी जो ऊपर का layer है that is also epithelial tissue. Okay. Now there are categories of epithelial tissues: squamous epithelial tissue, stratified epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue and glandular epithelial tissue. ये सारे के सारे all the 6 tissues का location, function and structure you will be learning. See, in the plant tissues also there were diagrams of phloem, xylem, meristematic, permanent. सारे diagrams you have to practice and same applies for animal tissue. Wherever you see a diagram of a tissue, you are obliged to do it. We start with squamous epithelium tissue. Squamous. Squamous का मतलब होता है flat, एकदम flat, large surface वाला cell, which is either pentagonal or a quadrilateral kind of. हमारे टाइल्स कैसी होती है? टाइल्स ऐसा कुछ. ये सेल्स एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. अगर ये टाइटली पैक्ड होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, फ्लैट, लार्ज एंड हैविंग अ स्मॉल न्यूक्लियस. देन व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड दे बी प्रेजेंट? उनका लोकेशन क्या होगा? They are present on the upper layers of the flat surfaces, like the inner cavity of the mouth. Mouth का जो अंदर का cavity है वो squamous epithelial tissue से बना है. बहुत सारे ऐसे internal organs हैं जिनका जो upper surface है वो flat है, smooth है. वो smooth and flat surface में squamous epithelium is present. For example, blood vessels. You know, I hope you remember blood vessels. आर्टरीज, वेन्स हमने किया था, इट्स स्टैंडर्ड. सो आर्टरीज और वेन्स का भी जो अंदर का सरफेस होता है, ये जो अंदर का सरफेस होता है वो स्मूथ होना चाहिए ना, तभी तो ब्लड बिना रुकावट के पास होगा. दैट इज द रीजन दे आल्सो हैव स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. सो नाउ यू नो देयर लोकेशन, देयर स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन. they provide a larger surface area, being flat, and also helps other organs, मतलब जहाँ पे भी present है. For example, blood vessel. So, what is the function? Helps in blood passage. Esophagus, food pipe, helps in food passage. जहाँ present है उसका जो function होगा वही वो tissue का function हो जाएगा. Okay, we move ahead. Stratified epithelium tissue. Strata. Strata word का मतलब होता है, for example, strata. Strata शब्द का मतलब होता है layer. एक के ऊपर एक जो layers होते हैं. हमारा black forest cake कैसा होता है ऐसा layer में, वैसा ही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू ना ऐसा लेयर में होता है. एक टिश्यू का लेयर ऐसा लाइक 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5 ऐसे सेल्स होते हैं जो लेयर्स में होते हैं. लेयर्स में होने की वजह से क्या फायदा होता है हमको? वी गेट एन एडवांटेज दैट लेस एरिया में मोर सेल्स, सो मोर एक्टिविटी. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का लोकेशन क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल रीजन एंड डर्मल रीजन ऑफ द स्किन. स्किन के एपिडर्मल और डर्मल लेयर में है, गिविंग अस मोर अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्लस इट इज मोर फ्लेक्सिबल. दैट इज द रीजन we have this flexibility, tensile pull in the skin region. That was about stratified epithelium tissue. So now you know its location, function and the structure, like the strata, layering. Cuboidal, नाम से ही समझता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? छोटे छोटे क्यूब्स के जैसा, वेरी टाइनी क्यूब्स के जैसे जो सेल्स होते हैं, दे आर मेकिंग अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दैट इज द स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज द लोकेशन? Cuboidal epithelium is present
more in the salivary gland. salivary gland salivary gland क्या करता है, सलाइवा देता है, तो they are present in the salivary gland and kidneys में present होते हैं. नेक्स्ट इज कॉलमनार, नाम से समझेगा कॉलम के जैसा, ऐसा टॉल सेल्स होते हैं कॉलम के जैसे, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट. सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है, डक्ट मतलब पाइप जो सलाइवा लेके आता है, वहां प्रेजेंट होते हैं. कॉलमनार इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड स्टमक रीजन एज वेल. नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये ऐसा कॉलमनार जैसा ही होता है बट इसके ऊपर ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सीलिया ये ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, सॉरी ये ट्रेकिया में, विंड पाइप में प्रेजेंट होता है. दिस इज द विंड पाइप, इसमें दोनों साइड पे सीलिया होगा. हमारा एस्केलेटर होता है ना मॉल का, एस्केलेटर में दोनों साइड पे वो ब्रश होते हैं जिसमें अपन ऐसा पैर डालते रहते हैं. हाँ, तो दैट वो जो ब्रश लाइक होता है ना, वैसा ही विंड पाइप में होता है. जैसे वो एस्केलेटर सारे डर्ट को वाइप ऑफ कर देता है, वो ब्रश एस्केलेटर पे सारे डस्ट को वाइप ऑफ करता है. सिमिलरली सीलिया इन द विंड पाइप, व्हेन वी ब्रीथ इन, जो भी डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं, सो दैट जब एयर नीचे तक पहुंचती है लंग्स तक, तो उसमें बैक्टीरिया और डस्ट नहीं जाते हैं. सो नाउ यू नो इट्स लोकेशन, दैट इज विंड पाइप, एंड इट्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट अस सो दैट द डस्ट डजंट एंटर, एंड you also know its basic structure. Okay, next is glandular epithelium. glandular का मतलब होता है gland present है. gland क्या होता है, जो secrete करता है कुछ ना कुछ, that is called as glandular epithelium. You have studied in 8th standard endocrine glands. हाँ, तो अभी gland, endocrine gland you must have studied. pituitary gland सबने पढ़ा है. अब pituitary gland या thyroid gland का एग्जाम्पल ले लो. ये organ है, organ में से हार्मोन निकल रहा है, तो उसका जो टिश्यू है दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन सिक्रीटिंग एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. सो नाउ यू नो वेयर इज ग्लैंडुलर प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकस ग्लैंड, नोज, म्यूकस जो निकलता है नोजी, और द सलाइवरी ग्लैंड और द ईसोफेगस दैट इज द फूड पाइप, ताकि खाना आराम से फिसल के नीचे तक जाए. कनेक्टिव टिश्यू, I hope epithelial tissue का structure, function and location is absolutely clear. We move ahead with connective tissue. Connective tissue is further divided into 3 parts. Let us understand. That is connective tissue proper, supportive tissue proper and fluid tissue, fluid connective tissue. First one is connective tissue proper. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला है एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू. सी अंडरस्टैंड, समझो मैंने अपने घर पे कोई चीज मंगाई है, वो चीज लाइक आई हैव ऑर्डर्ड अ टीवी अप्लायंस. नाउ ये टीवी का जो अप्लायंस है, टीवी का शेप तो कैसा अजीब कैसा भी हो सकता है, वो एक कार्टन में आएगा. कार्टन के अंदर देयर वुड बी थर्माकोल, थर्माकोल के अंदर बबल रैप होगा उसको प्रोटेक्शन देने के लिए. सो थर्माकोल और टीवी के बीच में जो गैप्स है, गैप में बबल रैप डालते हैं. दैट इज द सेम थिंग एरियोलर टिश्यू डज. हमारी बॉडी में स्किन और बोन्स के बीच में जो गैप है उसके अंदर एरियोलर टिश्यू है. इट हैज अ मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू ना, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स होता है. What do you understand by matrix? Matrix is the ground substance जिसके अंदर cells होते हैं. Cells, I have explained you in the last lecture, cells chapter कि cytoplasm was the matrix for cell organelles. Similarly, यहाँ पे भी matrix है for other cells in the tissue. Okay. Now, areolar का matrix कैसा होता है पता है? Jelly like. इसीलिए तो ये soft feel होता है. Bones के बीच में touch and see, you feel softness because वहाँ पे areolar tissue है. Okay. इसका function क्या हो गया? Packaging. इसका structure कैसा हो गया? Semi-solid structure. एंड इसका लोकेशन क्या हो गया? प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, मसल्स एंड स्किन लेयर अराउंड द ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स. फैटी लेयर, स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होता है उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं. जिसमें फैट ज्यादा होते हैं उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है. पोलार बेयर कितना फैटी है ना वो, व्हाई? बिकॉज इट हैज सो मच हाई अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू. प्लस इसका फंक्शन क्या है?
हमारी बॉडी में जैसे एडिपोज टिश्यू फैट्स एनर्जी देता है, वैसे ही इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हीट। लाइक गर्मी में बहुत ठंडी में दिस प्रोवाइड्स प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल पोलार बेयर इतना ह्यूज और इतना बल्कि क्यों है? बिकॉज ये क्या करता है, अपना फैट कंटेंट इतना बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसमें से हीट लूज नहीं होती है। अगर हीट लूज नहीं होगी, no issues to its metabolic processes. Similarly, even this is observed commonly भी, कोई ज्यादा हेल्दी पर्सन होता है अगर रूम में, तो उसको एसी से बहुत जल्दी ठंडी नहीं लगती है, और कोई लीन होता है तो उसको एसी 16 पे डाल दो, उसका चालू हो जाता है कि एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ। That is because of the presence of adipose tissues. Okay, there is one more function to adipose tissue, that is it provides padding and cushioning. Padding का मतलब होता है अगर कोई गिरा उस जगह पे जहाँ पे एडिपोज टिश्यू है तो उसको लगेगी नहीं। ये जो एल्बो होती है हमारी, एल्बो पे लगता है तो सन करके पेन होता है। There's a different type of pain, एकदम गंदा वाला पेन होता है। Why? Because there is absence of adipose tissue here. You can touch and feel. You will not find any fatty layer here. कोई टिश्यू नहीं है adipose tissue, फैट्स नहीं है, इसलिए तो दर्द करता है। बट यहाँ पे अगर लगेगी तो दर्द नहीं करेगा। Why? Because adipose tissue, that is fats, absorb कर लेंगे पेन। Okay. So adipose tissue कहाँ पे प्रेजेंट है? अंडरनीथ द आई बॉल्स, आई बॉल के पीछे जो फैट्स है, किडनी के आजू बाजू, हार्ट के आजू बाजू, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनके आजू बाजू जो भी फैट्स प्रेजेंट है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स अस in different type of connections and different types of connections. By the way, connective tissue नाम से ही समझता है क्या करेगा, ये बॉडी के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करेगा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग अस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। These are fibers present, ऐसा white fibers, yellow fibers होते हैं जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, कनेक्ट करने में। सी वन पॉइंट ऑफ फंक्शन इज कॉमन फॉर ऑल दीज टिश्यूज, कनेक्टिव है ना, तो एकदम आराम से वी कैन राइट दे हेल्प इन कनेक्टिंग और वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव, जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, नेक्स्ट कैटेगरी इज सपोर्टिव टिश्यू प्रॉपर। नाम से ही समझता है क्या करेगा, ये सपोर्ट देगा। दो टाइप्स है इसमें हमारे पास, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। कार्टिलेज ना हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ईयर के टिप एंड नोज के टिप पे, इसीलिए नोज और ईयर्स के टिप पे जब पियर्सिंग करते हैं तब खून नहीं निकलता, ब्लड नहीं निकलता। Why? Because there are no blood vessels here, plus it is very soft and still it helps in connection. It is also semi-solid kind of. Okay. And the next one is bones. Bones, you know, makes up the skeleton system of our body. Very hard. उसका ग्राउंड मैट्रिक्स क्या होगा, सॉलिड। कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या होगा, सेमी सॉलिड। फाइब्रस सेमी सॉलिड, एडिपोज सेमी सॉलिड, एरियोलर सेमी सॉलिड। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के बारे में वी हैव डन अ डिटेल्ड अमाउंट ऑफ स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स, तो ब्लड टिश्यू हो गया ना। व्हाई आर वी कॉलिंग ब्लड अ टिश्यू? हर वो चीज टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर कुछ बनाते हैं। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स मिलकर कुछ बना रहे हैं, दैट कुछ इज ब्लड एंड ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड का फंक्शन तो वेरी इजी फॉर अस, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट। Next is lymph. Lymph you need to understand. Probably you have already studied, but still we will understand. Lymph कब होता है, जब सेल्स होते हैं ना, सेल्स के आजू बाजू में जो फ्लूइड होता है, जो सेल्स के वेस्ट को बाहर तक लेके जाता है, उसे कहते हैं lymph. So lymph is also liquid connective tissue and blood is also liquid. That is the reason they fall under fluid connective tissue. They are both present all over the body. All over in the body, blood in the blood vessels and lymph in the lymph vessels. Okay. So by this we complete connective animal tissues. Next part, muscular tissue or the muscle tissue. Muscle tissue are of three types.
striated tissue, unstriated tissue, cardiac tissue. Striated tissues are also called as voluntary tissues. See, these are the tissues which are having as a cylindrical shape. इसका structure I'll explain you. They have cylindrical shape and they have alternate light and dark bands. You can see that in your diagram. ऐसा कुछ shape है, cylindrical है और ऐसा एक dark band है, फिर कुछ नहीं है, फिर वापस dark band है, फिर कुछ नहीं है and बीच बीच में nucleus भी है. तो alternate dark and light and cylindrical in shape होता है. They are also called as voluntary muscle tissues. Voluntary मतलब क्या? They perform the function on our own will. हमारी मर्जी से मूवमेंट करते हैं. Now when I am speaking, so my mouth, my facial muscles are voluntary. मेरी मर्जी से चल रहे हैं. My hands are moving on my will. तो voluntary है. वो tissues जो अपनी मर्जी से चलते हैं on our own will are called as voluntary tissues. So what is the structure? Cylindrical with dark and light bands and they are unbranched. Then what is their location? They are present in the arms, legs as well as muscles which are voluntary. You can just write muscles of the hands and legs and you can write facial muscles. Next, and what is their main function? They are voluntary in action, that is they work on their our own will, हमारी मर्जी से. Next, involuntary. Involuntary are unstriated. Unstriated मतलब यहाँ पे स्ट्राइप्स नहीं है, ये एकदम पतले स्पिंडल शेप्ड है, ऐसा कुछ स्पिंडल शेप्ड, सिंगल सिंगल. दिस इज द डायग्राम व्हिच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल. ओके, स्पिंडल फाइबर जैसे. भाई देखिए स्पिंडल क्या होता है? एरोप्लेन का जो शेप होता है ना उसको स्पिंडल बोलते हैं भाई. स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस. दे आर इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी है मतलब क्या? हमारे विल पे चलेंगे नहीं. ब्लिंकिंग ऑफ आईज मेरे विल पे होता है नहीं. देन स्वैलोइंग एक्शन. इफ आई स्वैलो समथिंग, तो फूड पाइप से स्टमक में खाना मैं बोलती हूँ तभी जाता है. अब इधर से लेफ्ट लेना है राइट लेना है नहीं, वो जाएगा सीधा जाएगा. Why? Because वो muscles जो फूड पाइप में है those are involuntary muscles. Okay. Then what other muscles are involuntary? Lungs. Respiration हमारी मर्जी से हो रहा है नहीं. Digestion नहीं. Okay. Next. Next is cardiac tissue. Cardiac word से ही समझता है. What is cardiac? Heart. Heart के जो muscles होते हैं सबसे strongest, हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है ना वो है हार्ट. बिकॉज हार्ट 24/7 काम करता है, टायरलेसली काम करता है. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द रीजन इट इज एक्टिंग टायरलेसली? द ओनली रीजन बिकॉज इट हैज टू डू कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. हार्ट थक गया तो हम थक जाएंगे. तो कार्डियक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. दे आर इनवॉलंटरी एंड ब्रांच्ड. दिस सम्स अप द मसल टिश्यू. Last part of the chapter, that is neural tissue. Neural tissue luckily we have already studied 8th standard में डिटेल में. ये न्यूरॉन का डायग्राम बहुत बार ड्रॉ किया है हमने. अब still we will do a quick revision. Neural tissue is the tissue which is present in the nervous system made up of nerve cells. Nerve cells are called as neuron. You know this diagram of neuron. इसका लेबलिंग करेंगे तो स्ट्रक्चर भी समझ जाएगा. इसका फंक्शन क्या है? To transmit impulses from one place to another. What is the labeling for this? इसको क्या कहते हैं? This is called a cyton. This is called a nucleus. This is axon. These are dendrites. These are dendrons. एक डेंड्राइट elongate होता है axon. इसके ऊपर जो कवरिंग होती है माइलिन शीट. And this is what a neuron looks like. So neuron का function क्या है? Helps in conduction of or transmission of impulses. This basically sums up animal tissue. बहुत easy है ये chapter because all you have to do is remember names. For remembering names, flow chart के तरीके से पढ़ो. Because function, location और structure तो नाम से याद आ जाएगा. नाम याद हो गए बाकी सारी चीजें भी याद हो जाएगी. Okay. This is how we conclude the chapter. See you soon. Stay fine.